नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और हम हैं दोनों कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वणकम, शलोम, in Chinese ni hao, in Japanese konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jambu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wonderful. I love the way he says that. Absolutely fantastic. I've stayed there in Dar es Salaam for quite some time, 1 year. One of these days you must make a movie in Swahili. So Pradeep ji, the Prime Minister has landed in Italy. Mr. Narendra Modi has just met Giorgia Meloni. He has met the French president. He has also met the Ukrainian president. Yes. He met Mr. Zelensky as well. Zelensky, Rishi Sunak, Emmanuel Macron. Yes, the French president. The list goes on. Absolutely. And the only thing which is very interesting, for me at least, for the G7 is the manner in which President Joe Biden doesn't seem to know where he is. You know, He's just catching up. I remember, I think, who was that second president, father and son dude? George W. Bush. George W. Bush too. He had senior and junior. serious problems. He didn't know which direction to go. Yes. He used to go the opposite direction and people used to guide him back. Yeah, George W. Bush Jr. was dyslexic. Yes. Please understand. Yes. Whenever they used to say left, he used to hear right. So that used to be the problem. But there's a lot of similarities of the walking movements and the way both of them. yes, and quite interesting actually. It's really truly very interesting. And by the way, of course, it's the birthday of one of our favorite politicians, namely Mr. Raj Thakre. Raj Thakre साहब का आज जन्मदिन है. Yes, sir. And it's also the birthday of Donald Trump. बिल्कुल. I didn't know Donald Trump and Raj Thakre shared a birthday. I hope that's the only thing they share. But they are both very aggressive. They are both they stick to what they stand. yes, There is no duplicity about what they talk and what they do. So बहुत सारी चीज़ों में दोनों Donald Trump और Raj Thakre जी, if you see, they are very vocal. They tell you the thing and they stick to it. And yes, if they are there with you, they are there with you. and if they're not there with you, they're not. And they're very open about it. Absolutely. Absolutely love the way Raj Thakre works. Absolutely fantastic. So, all the very best to him. Very happy birthday, Mr. Raj Thakre. Raj Thakre जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। और पूरा महाराष्ट्र, मुझे ऐसा लगता है कि अब महाराष्ट्र को राज ठाकरे जी को मौका देना चाहिए। ये मैं मान करके चलता हूँ। बहुत हो गया यार, सब लोगों को आपने मतलब मौका दे दिया, सब लोगों को ट्राई कर लिया, सब लोगों ने आपको इफेक्टिवली धोखा दिया है। Yes. Let's be very clear. People haven't really bothered about what is really and truly required for Maharashtra, except for this man on your screen. And at the moment, from the Maharashtra Navnirman Sena, with us we have Mr. Ketan Naik, who I firmly believe will finally have a career in the film industry as well. और फिल्म इंडस्ट्री में उनका करियर ज़रूर शुरू होगा बहुत जल्दी। अब वो पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू हिम। केतन नायक जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हर रोज इतने हैंडसम लग रहे हैं सर, क्या है, ज़बरदस्त सर, फैंटास्टिक। मतलब मैं बोल रहा हूँ नए हीरो की ज़रूरत है सर बॉलीवुड में। क्या कर रहे हैं आप? तीनों के तीनों खान बुड्ढे हो गए हैं सर, आपकी ज़रूरत है वहाँ पे। देखो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों रिटायर होना चाहिए उनको बहुत जल्दी। उनकी जगह आपके लिए वेट कर रही है। खैर फिलहाल जहाँ है वहाँ सुखी है सर, धन्यवाद जी। हम भी बहुत सुखी हैं, हमें भी बहुत सुकून मिलता है कि आप हमारे साथ हैं, यहाँ पर हैं। और असल में मुझे मैं क्या बताऊँ आपको, तेरे दिल से आपको बता रहा हूँ, मेरी आत्मा की आवाज़ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ताओं से, नेताओं से जो बात करके जो सुकून मिलता है और किसी से नहीं मिलता, क्योंकि मालूम है यार ये लोग बड़े सिंसियर हैं, ये असल में महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, दिल खोल के बात करते हैं, ये असल में बात कर रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है। और अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को, राज ठाकरे जी को, मैं उम्मीद करता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग अब मौका देंगे कि भैया आप मुख्यमंत्री बनिए, प्लीज़ सरकार बनाइए।
मुझे ऐसा लगता है दिस इज माई बर्थडे विश फॉर मिस्टर राज ठाकरे. एक्चुअली इट इज माई विश फॉर माई सेल्फ एंड द पीपल ऑफ महाराष्ट्र ऑन राज ठाकरे बर्थडे. ये जो मैं विश कर रहा हूँ ये अपने लिए कर रहा हूँ, राज ठाकरे के लिए नहीं कर रहा हूँ. राज ठाकरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राज ठाकरे जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, अलग अलग बात है, वो वही राज ठाकरे रहेंगे. लेकिन महाराष्ट्र को बहुत बहुत फर्क पड़ने वाला है प्रदीप जी अगर आज राज ठाकरे बनते हैं मुख्यमंत्री. बिल्कुल. एंड वेरी हैप्पी He is very passionate, a very passionate person. वेरी हैप्पी बर्थडे टू राज ठाकरे. बिल्कुल सर. राज ठाकरे साहब का जन्मदिन है, उसके लिए उनको बहुत 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 शुभकामनाएं. कीर्तन जी कुछ कहना चाहेंगे राज ठाकरे साहब को, राज ठाकरे साहब के लिए? आपके ये आपका चैनल है, लोगों के सामने कुछ राज ठाकरे जी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जरा प्लीज बोलिए. प्लीज कीर्तन जी. सर, आज हमारे सर्वोच्च नेता, हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे मराठी हृदय सम्राट सन्माननीय राज साहब जी का आज जन्मदिन है. और उनके जन्मदिन पे जैसे आपके स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूँ, महाराष्ट्र के बाहर से भी, एमपी, इस सारे एरिया से भी लोग आते हैं. इस बार भी आए थे. कुछ लोगों की मेरी मुलाकात भी आज हुई जो इंदौर से आए थे स्पेशली राज साहब के बर्थडे के लिए. तो ऐसे लोगों का नेता, लोगों का चहीता नेता, और लोग जिन्हें चाहते हैं कि इस नेता के हाथ में कोई बड़ी पावर या महाराष्ट्र में बदलाव करने की कोई स्थिति इनके पास हो, ऐसा एक नेता, उनका जन्मदिन है. ये ऐसे एक नेता है महाराष्ट्र में जो पूरे महाराष्ट्र को अपना मतदार संघ मानते हैं. वो ऐसे नहीं कहते कि मैं पश्चिम महाराष्ट्र का नेता हूं या विदर्भ का नेता हूं या मुंबई का नेता हूं. पूरे महाराष्ट्र को अपनी भूमि और पूरे महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि मान के चलने वाले हमारे नेता है. और उनका जो जन्मदिन है उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से उनको शुभेच्छा तो देता ही हूँ. और सारे महाराष्ट्र सैनिकों की जो भावना है, जो आपने अभी कह के दिखाई कि महाराष्ट्र का जो सर्वोच्च पद है मुख्यमंत्री पद, उस पद पे किसी दिन हमारे महाराष्ट्र सैनिक राज साहब को बैठे हुए देखना चाहते हैं. और वो इसीलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उनके हाथों से जो महाराष्ट्र को एक इज्जत, एक नाम, एक बरकत, एक तरक्की मिलनी है, वो उनके माध्यम से मिले. इसलिए वो इस महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे आज नहीं तो कल आए. और यही कामना आज आपके चैनल के माध्यम से मैं करता हूँ. प्रदीप जी, तो आपने राज साहब ठाकरे ने कहा कि हम लोग स्वयं बलों पर लड़ेंगे, 225 से 250 सीट तक सब मन सैनिकों को कहा कि आप तैयारी कीजिए. राज साहब ठाकरे ने कहा मैं किसी के साथ बैठने वाला नहीं कि सीट चाहिए वो सीट दूंगा या सीट चाहिए, ये अरेंजमेंट मुझसे जमेगा नहीं और होना नहीं थे संगीत. तो हाउ डू यू सी, आप तैयार हो क्या? राज साहब ने आपको बोला है कि आपको तैयार रहना पड़ेगा. केदार नाइक जी. सर बिल्कुल, जैसे कि आपको पता होगा, हमारा जो सालाना गुड़ी पाड़वा का जो हमारा मेड़ावा होता है शिवाजी पार्क पे, छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क पे, हम सारे महाराष्ट्र से हमारे सारे पार्टी वर्कर्स वहां पे आते हैं. और वहीं पे राज साहब ने, मतलब ये लोकसभा चुनाव लगने से पहले ही कह दिया था कि आप तैयारी विधानसभा की करने शुरू कर दीजिए, हमें विधानसभा के लिए तैयार होना है. इसके बीच में बहुत कालखंड गया, लेकिन राज साहब का जो आदेश था वो तो पहले ही आ चुका था कि विधानसभा के लिए आप तैयार रहिए. जैसे आपको आज मीडिया में आपने न्यूज भी देखी होगी कि राज साहब पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं. जो ग्रामीण इलाकों में जहां जहां उनको जाना है वहां पे वो जाने वाले. तो समझ लीजिए सर, हम विधानसभा की तैयारी में जोर शोर से लग चुके हैं. महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा मतदार संघों में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे. और इस बार जो जनता का माहौल और जो आज हमने राज साहब के घर के बाहर जो भावनाएं लोगों की देखी है, उससे ये पता चलता है कि इस बार हमारी फाइट भी बहुत तगड़ी होगी और हम जरूर ऊपर के स्थान पे हमारी पार्टी को ले जाएंगे. फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. राज साहब ठाकरे जी ने हमेशा आपको कहा कि ये जो उद्धव ठाकरे जी के उनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, बट अमित शाह जी से भी कहा था कि देखो आपने पार्टी तोड़ा तब तक ठीक है, मगर सिंबल लेना और पार्टी खींच के लेना ये ठीक नहीं है, बिकॉज ये बाला साहब ठाकरे जी के बनाए हुए सिंबल है. पार्टी बाला साहब ठाकरे जी के बनाए हुए पार्टी है, लोग जुड़े हैं सिंबल. ये उद्धव जी का क्रिएशन नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का क्रिएशन नहीं है. तो राज साहब ने कहा कि अमित शाह जी से भी कहा, टॉप बीजेपी लीडरशिप से भी कहा कि आप ये करोगे तो सिंपैथी वेव थोड़ा उस तरफ जाएगा. इस पर थोड़ा रोशनी डालिए केदार नाइक जी. सर बिल्कुल, देखिए मैंने कुछ दिनों पहले हमने जब चर्चा की तो मैंने आपको बताया था कि राज साहब की जो विजन होती है वो आपकी करंट जो सिनेरियो आपके सामने है उसके प्रति ना, तो उसके बहुत दूर तक जाके वो सोचते हैं. तो जब ही उनके सामने ये सब चीजें महाराष्ट्र की राजनीति की जब घट रही थी, तब बातों बातों में राज साहब ने ये कहा था कि बहुत सारी चीजें गलत हो रही है.
उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया था कि महाराष्ट्र की राजनीति का जो कैरम है वो कुछ इस तरह से फूटा है कि कौन सा कॉइन किस होल में जा रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी का मतलब ये था कि बहुत ही अलग तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति ने मोड़ लिया था। पार्टियां टूटी थी, लोग यहाँ वहां एक दूसरे के हो गए थे। एक आदमी अगर आज इस पार्टी में है तो वो कल इसी पार्टी में होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे पा रहा था। और उसके बाद में ये शिवसेना का फुटना, उसके बाद में से कुछ एमएलएस का उनके पास जाना, फिर पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम भी उनको जाना। तो राज साहब की तरफ से यही कहा गया है कि आप उद्धव ठाकरे जी के साथ में क्या राजनीति करते हो इसके बारे में अलग सोचा जा सकता है, लेकिन बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट सन्माननीय बाला साहब ठाकरे, इनका जो एक मानने वाला वर्ग और इनके ऊपर जान कुर्बान करने वाला एक वर्ग जो महाराष्ट्र का अंतर्भाव था। तो इसके अलावा राज साहब ने यह भी कहा है कि इन सारे लोगों से तो जनता त्रस्त है ही, अगर एक अच्छा पर्याय उनके सामने रखा जाए तो जनता उनके साथ में आने के लिए तैयार है। और इसीलिए सर हम लोग इस विधानसभा में पूरे ताकत से उतरेंगे ताकि जनता के सामने वो पर्याय स्ट्रांगली खड़ा रह सके। लेकिन जहां तक ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, क्या अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो हर जगह पहुंच गया है कितना ही? सर बिल्कुल पहुंचा है। हमारी बहुत सारे ग्राम पंचायतों में भी हम चुनाव लड़ चुके हैं। वहां पे हमारी शाखाएं हैं, वहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, उस शाखा के माध्यम से उनकी जो रूरल एरिया की भी जो समस्या होती है वो भी सॉल्व करने का काम किया जाता है। आपने देखा होगा पालघर, जवार जैसे आदिवासी भाग में भी हमारे नेता अविनाश जाधव जी हो या वहां की हमारी पूरी टीम हो वो कार्यरत है। वहां विदर्भ में हमारे राजू उम्बरकर साहब है, वो वणी एरिया में कार्यरत है। तो पूरे महाराष्ट्र में हमारा संगठन है और वो संगठन एक विचार के साथ इकट्ठा हुआ संगठन है। वो किसी के कोई सत्ता में गया इसके लिए साथ में आया ऐसा वाला संगठन नहीं है। राज साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके विचार पे विश्वास रखने वाले लोग हैं और उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पे देखने के लिए जो पड़े वो परिश्रम करने को तैयार रहने वाले लोग हैं। जबरदस्त। केदारनाथ जी, ये इंडिया पाकिस्तान मैच, क्रिकेट मैचेस, ये हमेशा एक विरोध, बिकॉज अगर आप डिप्लोमेटिक टाइम्स वहां पर नहीं है तो क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या नहीं है, एक कंप्लीट कंटिन्यूस एक चर्चा का विषय रहा है। राज साहब ठाकरे हमेशा एक स्टैंड लेते हैं, मनसैनिक हमेशा एक स्टैंड लेते हैं, और आपने अभी भी वो स्टैंड की तरफ प्रोटेस्ट के हिसाब से वो सब कर दिया कि पाकिस्तान के सामान यहां पर, तो उसमें थोड़ा गौर रोशनी डाले कि ये क्या देखा आपने? सर आपको पता होगा ड्रीम 11 नाम की एक कंपनी है और उस कंपनी के माध्यम से स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज की जाती है। फिर वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हो या बाकी कुछ वो टीम बनाना हो, ऐसी बहुत सारी चीजें, और आज के यंग जनरेशन में उसका बहुत क्रेज है। तो उनका ये एक ऐप है फैन कोड नाम का, जहाँ पे जो भी क्रिकेट मैचेस वगैरह होती है उनको ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाता है। अब इस ऐप के अंदर एक उन्होंने एक सेगमेंट रखा हुआ है जिसमें आप प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। जो भी टीम को आप फेवरेट आपकी टीम हो उसके आप गुडीज, उसके सोवेनियर्स आप ले सकते हैं। जो फ्रिज मैग्नेट होता है, बॉटल्स होती है, टी शर्ट, जर्सीज होती है, कीचेन्स होते हैं, वो ले सकते हैं। तो सर इस ऐप ने अपने ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पूरे देश में पाकिस्तान से रिलेटेड, जैसे पाकिस्तान के झंडे का उसमें लोगो हो, पाकिस्तान की टीम की जर्सी हो, पाकिस्तान लिखे हुए बॉटल्स, फ्रिज मैग्नेट, ऐसी सारी चीजें बेचने के लिए रखी थी। और ये कुछ लोगों ने वहां पे खरीदारी भी की है, उन्होंने बल्क क्वांटिटी का भी ऑप्शन वहां पे रखा था। तो ये बात हमारे कार्यकर्ताओं के नजर में जब आई तो हमने उस ऑफिस का एड्रेस पता किया और वो ऑफिस निकला आपके बीकेसी में, जो बीकेसी 1 बिल्डिंग है वहां पे उनका ऑफिस निकला। तो कल हमारी पार्टी की सुबह में मीटिंग थी, राज साहब ने हमें मार्गदर्शन किया। उसके बाद में हम उस ऑफिस में गए और उनको हमने पूछने की कोशिश की कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जो चीजें सामने आई थी तो बहुत ही धक्कादायक थी कि उनको इस बात का कोई मलाल ही नहीं था कि पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें वो अपने ऐप पे बेच रहे और लोग खरीद भी रहे, इसका कोई गम उनको नहीं था। सो ये खरीद कौन रहा है सर? हु इज बाइंग? वो बेच रहे हैं अलग बात है, हु इज बाइंग? सर वो प्रमुख मुद्दा वो है सर, इसकी डिमांड हमने कल ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिख के करी है कि ये कौन खरीद रहा है, महाराष्ट्र के किस मोहल्ले में इस चीजों को खरीदा जा रहा है, उसकी भी जानकारी पब्लिक होना जरूरी है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इतना प्रेम इस मुंबई और इस महाराष्ट्र और इस देश में किसको आया है वो भी जानना भी जरूरी है। तो हमने हमारे तरीके से वहां पे उनको रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनको समय दिया है, उनको अवधि दिया है कि इस विषय में आप तुरंत कार्रवाई करिए। आपको बता दूं सर, ये राज साहब का नाम और उनकी दहशत है कि हम उस ऑफिस से निकलने के पहले ही जितने भी पाकिस्तान से रिलेटेड प्रोडक्ट उनके ऑनलाइन ऐप पे थे वो सारे उन्होंने हटा दिए।
तो ये पहली विक्ट्री तो Sir, हमारी what हो ही was the चुकी है। online app? You said something. एक तो Dream 11 is the parent company. सर द ऐप नेम इज फैन कोड। Fan ऐप इज Code. कॉल्ड फैन कोड। FANCODE. Okay. जी। Okay. और इस ऐप पे आपको सारे टीमों के सोवेनियर्स मिलेंगे, सारी टीमों के वहां पे उन्होंने करके रखे। और सर शॉकिंग बात उससे दूसरी बताता हूँ, आज हमने दोपहर में उस इन कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है वो अंधेरी में स्थित कहीं पे है, तो उनके ऑफिस पे भी हम लोग गए। तो सर बिल्कुल बोगस प्रैक्टिस थी, मतलब जो मैन्युफैक्चरर का नाम उन्होंने वहां पे रखा हुआ है, उस ऑफिस पे काम कुछ और ही चल रहा है। वहां पे प्रोडक्शन का काम नहीं चल रहा था, वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं चल रहा था, तो वो कुछ ऐप से कनेक्टेड कंपनी थी। तो ये पूरी ही इलीगल प्रैक्टिस इनकी तरफ से की गई है और हमारी तरफ से मुंबई पुलिस के पास इसका पूरा विषय की बाकायदा कंप्लेंट होने वाली है और उनको हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि आप इस विषय में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और जो दोषी हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। But I really would like to know, very frankly, I don't know whether you'd be able to get it or not. Anyway, it should not be confidential. Who is buying? That's the most important question. जैसा आपने कहा, कौन लोग हैं जो भैया पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे खरीद रहे हैं? और आपको अगर मेरा ये कहना है वो लिस्ट पता करनी चाहिए और जिन जिन लोगों ने यहाँ पे जिनका पाकिस्तान से जिनकी इतनी मोहब्बत है उनको भिजवा देते हैं ना सर, ऐसी क्या बात है? वी कैन मेक ए कलेक्शन फॉर देम, कलेक्शन करके उनको बॉर्डर के बाहर भिजवा देते हैं, अपना वीसा अपने आप करते रहे वहां पे। आपको लगता नहीं कि उनको वहीं होना चाहिए? आप जाओ ना वहां पे यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलिए सर। अब टेक्निकलिटी और लीगलिटी में ये चीजें जाके फंस जाती है जी। जैसे अगर आप एक कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहे हो और आप एक ऑनलाइन ऐप चला रहे हो जिसके माध्यम से आप कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपका अधिकार होता है कि कस्टमर की जानकारी आप रिवील ना करें जी। लेकिन ये जो मुद्दा है सर, ये मुद्दा हमारे भावनाओं से रिलेटेड है, ये हमारे देश से रिलेटेड मामला है। जो पाकिस्तान जिनके द्वारा की गए फंडिंग से, जिनके द्वारा की गई हरकतों की वजह से पिछले कुछ दिनों में वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के यहाँ पे जो हमारे भाविक दर्शन लेने जाते हैं उन पे ऊपर हमला हुआ और उस हमले में हमारे लोग वहां पे मरे, उसी पाकिस्तान के अगर जर्सी, उनके टी शर्ट यहाँ पे कोई खरीद रहा है सर, झंडा, ऐसे लोगों पाकिस्तानी को झंडा ढूंढना बहुत जरूरी है जी। पाकिस्तान का झंडा तो सर उस पे नहीं था, जी। लेकिन झंडा बेचने वाले लोग भी है, हम उसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ और लोग अमेजोन या अदर मार्केट प्लेसेस पे पाकिस्तान के झंडे भी बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है सर गृह मंत्रालय और इन सारे लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हमारा काम होता है कि मुद्दा विरोधी पक्ष के होने के नाते मुद्दा सामने लाना और उसके ऊपर उसका फॉलोअप करना, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार जो सत्ताधारियों के पास होता है, उन सत्ताधारियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे जरूर ध्यान दीजिए और जो भी इसमें कल्प्रिट है उनको सजा दीजिए। केदार नाइक जी, आपने कहा कि यू बीकेसी के उनके ऑफिस में गए थे, ड्रीम 11 को उनको मालूम ही नहीं था कि हम लोग ये बेच रहे, पाकिस्तानी सामान बेच रहे, और फिर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, मालूम था फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आप वो अंधेरी वाले ऑफिस आप पता चला, अंधेरी वाले ऑफिस में आप गए तो आप बोल रहे कुछ नहीं, उधर कुछ दूसरे क्या चल रहा था केदार नाइक जी? सर जैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा आईसीसी होता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, वो कुछ लोगों को परमिट करता है कि आप ये गुडीज, ये सोविनियर्स आप बना सकते हो। तो वो जो लाइसेंस मिला है वो इस ड्रीम 11 वाली जो कंपनी फैन कोड है उनको मिला है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम उन्होंने अंधेरी स्थित किसी कंपनी को दिया है। तो जब मैन्युफैक्चरर भी यहाँ का है, जिसको लाइसेंस मिला है वो भी यहाँ का है, तो उनको इतनी तो मतलब उनकी भावना जागरूक होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान इसका छोड़ के हम सबका बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का हम नहीं बना सकते। तो उनकी तरफ से ये कहना था कि जब तक हम सबका नहीं बनाएंगे तो हमें लाइसेंस नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है इनकी देश भावना से ज्यादा इनको अपना बिजनेस और अपना धंधा है, और इसीलिए उनकी तरफ से ये चीज की जा रही थी, जिसपे हमने रोक तो लगा दी है, लेकिन सिर्फ रोक लगा के हम चुप नहीं बैठने वाले, हमें इनके ऊपर कार्रवाई चाहिए। हम जरूरत पड़ने पे इनपे, हमने तो कमिश्नर साहब के पास में इनके ऊपर बाकायदा जो भी कलम के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है वो गुनाह दाखिल करने की भी बात हमने की है जी। तो आपको लग रहा है कि इसमें, बिकॉज आज आप जो कह रहे हैं पिछले एक हफ्ते में 3 टेरर अटैक हो गए कश्मीर में, 3 टेरर अटैक हो गए, मंदिर जाने वाले इनोसेंट लोगों पर फायरिंग हो गया, गाड़ी, तो 3 टेरर अटैक के बाद भी क्या लोगों के मन में ये मन से निकल नहीं रहे कि पाकिस्तान के जो भी है उनका ये ड्रीम 11, तो क्या उनका रिस्पॉन्स था? ट्रिपल टेरर अटैक हुआ है कश्मीर में। उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट थी सर, वो हम जब गए उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे वो, हो सकता है कि पता नहीं, लेकिन यानिक जी और प्रसन्ना जी, ऐसे 2 नाम मुझे वहां पे मिल रहे हैं जो इस कंपनी के को फाउंडर और फाउंडर्स कहे जा रहे हैं। और उनके माध्यम से, मतलब सर ये बात कोई आप जूनियर ऑफिसर सामने बिठा दोगे,
उसके उसके बस की तो ये बात नहीं है। जब ये निर्णय लिया गया होगा तो कंपनी के मालिकों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, पॉलिसी मैटर रहा होगा, और उन्होंने अपना कुछ तो कॉन्शियस इस पे चर्चा होके ही इसको प्रोक्योर करने का काम किया होगा। तो मुझे लगता है उनके तरफ से माफी और उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमारी कोशिश अभी जारी है। अभी जो मैं आपको अंधेरी की कंपनी की बात बता रहा हूं सर, अंधेरी की कंपनी में जाने के बाद उस कंपनी को पता ही नहीं था कि उनके तरफ से ये सब हो रहा है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ये आपको पता नहीं है। मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किसी थर्ड पार्टी को आपने दिया हुआ है, और जब कोई ऑर्डर इस चीज की करता है तो फैन कोड अपने तरफ वो ऑर्डर मंगा के, मतलब डायरेक्ट वेयरहाउस से वो चीज शायद उनके पास जाती होगी और वो डिलीवर होती होगी। अब क्या मंगाया जा रहा है, क्यों मंगाया जा रहा है, उसमें पाकिस्तान मर चुकी है ऐसा मेरा कहना है, और इनको कुछ धंधे के अलावा पड़ी नहीं है, पैसे कमाने के अलावा पड़ी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें वाहियात बात क्या है कि भाई देखिए, रियासी के ऊपर वो जो शिवखोरी गुफा जो है, वहां से लोग दर्शन करके सीधा जा रहे थे वैष्णो देवी, वहां पे 9 लोग मर गए और अभी भी काफी लोग घायल हैं। बाय द वे, दे नॉट आउट ऑफ डेंजर येट। हो सकता है कि मरने वालों की संख्या और बढ़े। उसके बाद एक और अटैक हुआ, और उसके बाद जो J&K राइफल, जैक राइफल्स की जो एक आउटपोस्ट थी, उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंका गया, वहां पर भी अटैक हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि हम लोग यहाँ मुंबई में हैं, जैकला रेजिमेंट की जी, वो वहां पर वो लोग वहां पर हैं, की भावना तो नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, मतलब कि ये सब अटैक दोबारा बॉम्बे में हो, मुंबई में हो? No spirit of patriotism. किधर नाइक साहब? सर इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें आर्थिक रीजंस भी है सर, फाइनेंशियल रीजंस भी है। देखिए, पाकिस्तान का लोगो अगर कोई यूज करके यहाँ पे जर्सी अगर प्रिंट कर रहा है तो 100% पाकिस्तान की जो उनकी जो काउंसिल होगी, उनका जो क्रिकेट बोर्ड होगा, उसको रॉयल्टी जा चुकी होगी, तभी उन्होंने अपना लोगो किसी को यूज करने दिया है, आईसीसी को या जो भी होगा। इसमें उनको आर्थिक रूप से आप सक्षम बनाते हो, और जब वो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, उसका उपयोग वो किस लिए करते हैं? उनके जो पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए उस आर्थिक चीजों का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर सोचेंगे तो ये पैसा वो अपनी जनता की भलाई में यूज नहीं करते, ये पैसा वो अपने लश्कर को मजबूत करने में यूज करते हैं, और ये टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने के लिए यूज करते हैं। इनफैक्ट अभी तो बिल्कुल ऐसी आपकी बात कोई भी दुरुस्त है। एक्टिविटी जी, आपकी बात दुरुस्त है। अभी जो खबर आई है, एक there was a long article which appeared in the Financial Times London and carried again by one of our newspapers कि सर जो IMF का लोन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो लोन है, पाकिस्तान ने वो लोन का पैसा इस्तेमाल किया है चाइनीज से और वेपन्स खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अभी तक लोगों को ये समझ में नहीं आई है या क्या हो गया है, ये कुछ लोगों का लगता है मुझे कि कहीं स्क्रू लूज है या क्या है। और जिसको, और मेरा तो ये कहना है ना सर, जिसको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है, यार जाओ वहां पे, कौन मना कर रहा है? प्लीज प्लीज लीव, प्लीज गो, वील अरेंज फॉर यू, मतलब वील मेक ए कलेक्शन, आपको बसों में बिठा करके आपको भेज देंगे हम लोग। ऐसी क्या बात है? बिल्कुल सर। सर जिस देश के खाने के लाले पड़े हुए ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे भूखमरी से लोग मर रहे हैं, जिनको जो बेसिक सुविधाएं होती है वो मिल नहीं रही है, वहां पे अलग अलग तरह के जेनोसाइड चलते हैं, अलग अलग तरह के सिविल वॉर चलते रहते हैं। ऐसे देश को अपने नागरिकों को कुछ अच्छी चीजें देने के लिए पैसे इस्तेमाल करने चाहिए, या अपना लश्कर मजबूत करने के लिए करने चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। अभी मुझे लगता है सर, वो जितना अपना डिफेंस वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाते हैं, उससे होता तो कुछ नहीं है। हम जब हमारे देश ने जब चाहा, तब उनके ऊपर हम उरी जैसा अटैक करके आ ही गए। तो मुझे लगता है इनको अभी अपने लोगों पे ध्यान देना महत्वपूर्ण होना चाहिए, और अपने लोगों का उनका रहना सहना कैसे अच्छा हो, उसके ऊपर ध्यान चाहिए ना कि आप ये जो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हो वो उनको करना चाहिए। बट हैट्स ऑफ टू दी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यू आर दी ओनली पार्टी व्हिच इज एक्चुअली टेकन अप दिस इशू। ये इशू शायद आपने पहले भी लिया था, ये दूसरी या तीसरी बार आप ले रहे हैं। एक और भी कंपनी थी पहले, आई थिंक अमेजॉन के ऊपर बिक रहा था ये सब। अमेजॉन थी सर, जारा करके कंपनी है, वहां पे बांग्लादेश और पाकिस्तान से बने हुए कपड़े वहां पे रखे गए थे, तो उसके ऊपर भी हमारे पार्टी की तरफ से आंदोलन किया गया था। हमारे नॉर्थ रीजन के नेता है नयन कदम जी, उनके तरफ से वो किया गया था, उनके ऊपर बाकायदा केस दाखिल की गई कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया। तो ऐसी सारी चीजें हमें भुगतनी पड़ती है सर, लेकिन देश हित के आगे और पैट्रियटिज्म के आगे ये चीजें मुझे लगता है बहुत छोटी। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, ये मेरे दर्शकों के लिए भी है। कीर्तन नायक साहब, ये क्या बात है कि कोई और राजनीतिक दल इसको उठाता भी नहीं है, लोग इस तरफ देखते भी नहीं है? अकेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
ये विषय को उठा रही है, ये क्या सिर्फ आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी नहीं है क्या? केदार नायक सर। सर बिल्कुल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी ऐसे कुछ घटनाएं आपके आसपास घटती है तो एज अ सिटीजन आपको उतना जागरूक होना चाहिए। आपके पास जो भी माध्यम हो, भले आपके पास सोशल मीडिया का माध्यम हो या आप अगर ट्वीट के माध्यम से कमिश्नर को कुछ लिख पाए या आप कोई भी कार्रवाई कर पाए, वो आपको करनी चाहिए। आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जब आप वोट जाके करते हो तब आप कहते हो कि वोटिंग मेरा एक कर्तव्य है, मैं जाके वोट करूंगा। तो जब ऐसी घटनाएं घटती है तो उसके ऊपर बात करना, उसके ऊपर अपनी राय प्रकट करना और उसके प्रति एक प्रेशर क्रिएट करना, उसमें भी आपका सहभाग अगर मिल जाए तो उतना भी काफी होता है। बाकी तो हमारे राज साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो स्टैंड परमानेंट है सर ना। अब देखिए ना सर, जो आईसीसी जिसके पास आईपीएल कराने का खुद का अपना राइट है और उस राइट के अंडर वो अपने देश में बाकी सारे दुनिया के प्लेयर्स को खेलने देते, लेकिन हमारे स्टैंड की वजह से आज भी उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल नहीं पाते जी। तो ये हमारा स्टैंड तो परमानेंट है। मतलब आपके लिए कोई लड़ तो ऑलरेडी रहा है, आप उनको एटलीस्ट बैकअप करिए। फिर किस माध्यम से बैकअप करना है वो आपको सोचना होगा और उस तरीके से आपको आगे आना चाहिए। प्रदीप जी। Kiran Naik ji, coming back to Raj Sahab Thackeray on Uddhav Thackeray जी, राज साहब ठाकरे इन दिस इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शंस में भले एमवीए ने परफॉर्म अच्छा किया मगर उद्धव यूबीटी हैज नॉट परफॉर्म। डायरेक्टली 18 सीट से 9 सीट पर आए हैं और वोट्स उनको मिले हैं। राज साहब ठाकरे जी का कहना है कि जो वोट्स मिले हैं यूबीटी को वो ट्रेडिशनल वोट्स नहीं है, वो आपने आपके आइडियोलॉजी को चेंज करके कुछ और कम्युनिटीज के वोट को अपील करने के लिए, उनको अब साथ लेने के लिए आपने बेसिक आइडियोलॉजी को त्याग किया। तो इस पर जरा गौर फरमाइए, बिकॉज ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय राज साहब ने उठाया अबाउट जो वोट्स उद्धव जी को मिले हैं। सर देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो भी राजनेता है उनमें राज साहब ठाकरे वो नेता है जिनका महाराष्ट्र का दौरा, पूरे महाराष्ट्र का जिन्होंने खुद जाकर दौरा किया हुआ नेता उनको कहा जा सकता है। शरद पवार जी एक नेता है जिन्होंने महाराष्ट्र का बहुत दौरा किया होगा, जब महाराष्ट्र में क्राइसिस आए तब वो महाराष्ट्र में गए होंगे, लेकिन राज साहब बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। आप सोचिए उनके महाराष्ट्र में उनका नेटवर्क क्या होगा। हम पार्टी वर्कर तो उनका नेटवर्क है ही, लेकिन उनको किसी भी इलाके में घटी हुई घटना की जो जानकारी फर्स्ट हैंड मिलती होगी वो मुझे नहीं लगता किसी और नेता को मिलती होगी। ऐसे नेता की तरफ से अगर ये आकलन सामने रखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी को जो वोट्स प्राप्त हुए हैं वो इस तरह से है, तो सर उनका आकलन 100% सटीक होना जरूरी है, होगा ही। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुंबई का जो वोट शेयर उनका दिखाई देता है, उनको सर जो वोट बैंक, उनको जो वोटिंग मिला है, वो जो इलाकों में उनको वोट्स मिले वो कोई मराठी बहुल इलाके नहीं है। मोस्टली उनको मुस्लिम बहुल इलाकों से वोट मिले, मोस्टली उनको दलित बहुल इलाकों से वोट मिले, क्योंकि वहां पे संविधान की बात की जा रही थी, वहां पे और कुछ किया जा रहा था। लेकिन जो मराठी ट्रेडिशनल वोट थे उन्होंने सर बहुत बड़े परसेंटेज में वोटिंग के ऊपर बहिष्कार डाला। वो वोटिंग के लिए गए नहीं, उनको ऐसा लगा कि कोई पर्याय नहीं है सामने, हम वोट क्यों दे। जो बाला साहब ठाकरे जी को एक्चुअली मानने वाले लोग थे उन्होंने तो सोचा होगा ना कि आज की उनकी शिवसेना अगर वो कांग्रेस के साथ में वोट मांगने आ रही है, उनका खुद का बेटा अगर कांग्रेस को जाके उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करने वाला है तो उनका तो मन दुखा ही होगा, और उसी माध्यम से उन्होंने वोट करने से नकार दिया है। और वो मैं पक्का आपको बताता हूं, वो इस बार विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राह देख रहे, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार वहां पे खड़े होंगे और वो जाके हमारे लिए मतदान करेंगे। राज साहब से मिलने के लिए तानाजी सावंत जी जो मंत्री है वो मिले थे, और आप लोग ने बहुत संघर्ष किया था। हॉस्पिटल्स, म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उस विषय में आप लोग ने बहुत हंगामा कर दिया कि थिंग्स आर नॉट अप टू डेट, वहां पर ठीक नहीं है। तो क्या तानाजी सावंत राज साहब ठाकरे जी से इसी विषय में मिले कि अलग अलग विषय कुछ और था? बिकॉज आपका आंदोलन उग्र था कि बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, जो नहीं है। सर इस विषय के बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन राज साहब आप देखेंगे सर, आज की महाराष्ट्र की राजनीति में जितने भी आपको ये मंत्री और आमदार बने हुए लोग दिखते हैं, इन्होंने कभी ना कभी राज साहब के अंडर काम किया हुआ है। मतलब राज साहब इनके नेता थे, राज साहब इनके लिए प्रचार रैली लेने जाते थे शिवसेना की तरफ से, और तब जाके ये चुन के आते थे, या तब पार्टी कार्यकर्ता के लेवल पे वो काम करते थे। तो उनके संबंध राज साहब से होना कोई बड़ी बात नहीं होगी, उनके संबंध है ही, और उनको कभी ना कभी राज साहब के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो मार्गदर्शन लेने के लिए राज साहब के पास आते होंगे, और जब राज साहब को समय होगा तो उनको समय मिलता होगा।
अब उनकी चर्चा क्या वहां पे हुई उसके बारे में मेरे पास बिल्कुल भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जरूर उनका जो भी संबंधित मंत्रालय उनके पास है उसके बारे में 4 बातें राज साहब के तरफ से उनको सुनने मिली होगी, इसका मुझे पक्का गारंटी है। नारायण राणे जी बहुत खुश हुए थे कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वो क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीत गए, बिकॉज उनका राणे साहब का कहना था कि यहाँ युति के लोग ही उनके खिलाफ थे, वो राज साहब थे और मनसे के आप लोग थे जो उनको विजय रथ पर बिठा दिया, नहीं तो हार निश्चित था, बिकॉज रिबेलियन विद इन द महायुति था। तो राणे साहब आए थे, राज साहब ठाकरे खुद वहां पर सवाल लिए थे, जबरदस्त सवाल लिए, उसके बाद आप लोग ने जबरदस्त तरीके से राणे साहब नारायण राणे जी के लिए काम भी किए थे, वो उस चीज पर जरा वर्णन कीजिए, बिकॉज एक कोंकण था जो जिस प्रकार से जीता है राणे साहब। सर आप ही देखिए ना, कोंकण का जो सीट राणे साहब को इस बार मिला है, पिछली बार राणे साहब विधानसभा में भी कुछ मतों से हार गए थे और वो बहुत ही दुखद घटना वहां पे कही जाती थी। अब इस बार जो उनको लीड वहां पे मिला है, आपको नहीं लगता कि वहां पे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का और राज साहब को मानने वाला जो वर्ग है वो उनके जाने से मतों के रूप में परावर्तित हुआ? मैं आपको याद दिला दूं सर, वहां पे नितेश राणे जी जो नारायण राणे जी के चिरंजीव है, उन्होंने तो खुद कहा था, सभा के तुरंत बाद कहा था कि इस सभा का हमें बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलने वाला है और हमारे वोटों में इजाफा होने वाला है, और वही होता हुआ दिखता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो ताकत थी, जो मुंबई कर यहाँ पे रहता है, जब उनका वोटिंग शायद अपने गांव में कोकण में रहा होगा, उन्होंने भी राज साहब की सभा के लिए सभा में शिरकत की थी और उस सभा के बाद एक बहुत बड़ा वोट का परिवर्तन नारायण राणे साहब के लिए वहां पे हुआ। और आप जानते ही होंगे कि कुछ ही दिनों पहले नारायण राणे साहब ने हमारे राज साहब के शिव तीर्थ निवास स्थान पे आके उनसे भेंट करी और उनको धन्यवाद भी उन्होंने वहां पे प्रकट किया। तो बहुत अच्छी बात है सर, नारायण राणे साहब और राज साहब ने बहुत समय तक साथ में काम किया हुआ है, उनके संबंध बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जो उस पार्टी का जो एक राजनीति चली और उस राजनीति की वजह से जो बाहर पड़े हुए जो लोग हैं उनमें नारायण राणे जी का भी नाम आता है और हमारे साहब का भी नाम आता है, तो उनके संबंध आपस में बहुत अच्छे हैं। तो उसी तौर पर मुलाकात हुई होगी। केतन नायक साहब, लेकिन जरा डिसअपॉइंटमेंट हो गई कि इस बार नारायण राणे साहब को कैबिनेट में नहीं लिया। उनका जो मंत्रालय वो जीतन राम मांझी साहब को दे दिया, और वो जीतन राम मांझी साहब वही शख्स हैं बाय द वे जिन्होंने कहा है और आज तक कहते हैं, एक बार नहीं 7-8 बार कहा है कि राम एक काल्पनिक पात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रामायण जो है एक काल्पनिक कथा है और हम तो इसको बिल्कुल मानते ही नहीं हैं। और राम और रावण की अगर तुलना की जाए तो रावण का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये जीतन राम मांझी साहब हैं जो आज कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी साहब के कैबिनेट में, और उन्होंने नारायण राणे साहब की जगह ले ली है। मतलब मेरे लिए तो बड़ा अजीब लगता है। भारतीय जनता पार्टी के क्या पॉलिटिकल कंपल्शन सामने आए हैं और उनको किस मनस्थिति में ये निर्णय लेने पड़े होंगे, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन नारायण राणे साहब एक सक्षम काम करने वाले व्यक्ति है। दुरुस्त बात है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो काम किया उसकी तारीफ राज साहब ने उस मंच से की थी, और बहुत सारी नई जानकारी मेरे जैसे सामने हमारे जनरेशन के लोगों के सामने आई थी कि नारायण राणे साहब इतने एफिशिएंट तरीके से उस वक्त काम करते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा देर तक प्रशासकीय पदों पे काम किया हुआ है, बेसिक से लेके बड़े पद तक उन्होंने काम किया हुआ है। तो उनका मंत्रालय निकाल के किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है उस पार्टी का निर्णय होता है जो पार्टी सत्ता में गई है। लेकिन जो आपने नारायण राणे साहब के बारे में बात करी, मुझे अभी तक याद है जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, राज ठाकरे ही वाज इन द फोरफ्रंट कि भाई किसी भी तरीके से राणे साहब को मुख्यमंत्री बनाया जाए। याद रखें उस वक्त राज साहब जो थे वो शिवसेना में ही थे बाला साहब ठाकरे के साथ। हम लोग भी थे उसमें, उस अभियान में हम लोग भी शामिल थे कि जल्द से जल्द नारायण राणे साहब को बनाया जाए। लेकिन मुझे 1 या 2 इंसिडेंट याद हैं सर। राणे साहब का तो ऐसा था कि उनको पूरी फाइल याद हो जाती है। वर्ती साहब उस वक्त हुआ करते थे चीफ सेक्रेटरी, जो वर्ती साहब बोल रहे थे, मतलब ये तो मेरे सामने की बात है, उन्होंने उठा के बोला पेज 42 नंबर देखना, 42 नंबर पेज दूसरा पैराग्राफ देखना क्या लिखा है उसमें। तो मतलब कोई भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी नौकरशाह, सीनियर मोस्ट भी हो, अगर वो राणे साहब के आगे कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसको मालूम था कि राणे साहब को फाइल में क्या लिखा है, कानून क्या है, उसकी पूरी जानकारी है। ये बनना पड़ेगा साहब। बट आई फील वेरी सैड, ये मैंने जान करके वैसे ही उठाया। आई पर्सनली फील वेरी सैड बिकॉज आई लाइक मिस्टर राणे। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही इज अ वेरी गुड मैन एंड आई विश ही हैडंट लेफ्ट द शिवसेना उन्होंने छोड़ी। और हाँ, एक चीज़ है, जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी उस वक्त मुझे याद है हम लोगों ने उनके
उनका जो बंगलो था मंत्रालय के सामने, आई थिंक 4 नंबर बंगला उनका था शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी राणा साहब के सपोर्टर्स वगैरह की। उन्होंने सामने बोला कि जब तक राज साहब शिवसेना चला रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और उन्होंने वो क्या नाम है, वो जो जेम्स बॉन्ड साहब जो हैं, वो मातोश्री में जो रहते हैं, क्या नाम है उनका, क्या है, खांडेकर, क्या मिलिंद खांडेकर, मिलिंद नार्वेकर। मिलिंद नार्वेकर, हाँ मिलिंद नार्वेकर साहब, उन्होंने कहा वो मिलिंद नार्वेकर जी वो जब से आए हैं तब से हालत जरा खराब हो गई है। जस्ट एन असाइड, बट दैट्स इट। बट वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन टू राज ठाकरे साहब। आई होप द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, बट आई हाँ Gift लगाइए में लगाइए, ambulance, आप लोग ने हाँ, एम्बुलेंस भी शायद गिफ्ट किए। हाँ तो वो भी दिखाइए दिखाइए प्लीज दिखाइए। बट वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अगेन टू राज ठाकरे साहब। आई होप एंड प्रे दैट द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वोट फॉर हिम। आई होप इट हैपेंस। केतन नाइक जी, जी सर, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच बहुत अगेन। बहुत धन्यवाद। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप फिर भी बॉलीवुड में आप सोचिए जरा सोचिए और काम कीजिए। मैंने कहा था धन्यवाद सर। वो तीनों खान जो हैं सर वो रिटायर होने को जा रहे हैं, तो आपकी जरूरत है वहाँ पे, वेरी फ्रेंकली। चलिए नमस्कार सर, नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। वंदे मातरम।